Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to welcome you all to this session on ethical use of artificial intelligence, in particular Gen AI tools in literacy. So I am Dr. Khwaja Qasim. I am an associate professor and head of department computer science at Peria University, Lahore campus. So before I move on, I would like to present to you the scheme of this presentation. First, I took a detour and I will be presenting to you the sources first. Normally, what we do is we put references at the end, but I deliberately put the sources of my presentation in the start to uh, to to put an emphasis on this very particular point. And the punchline of this presentation, followed by there is an HEC draft policy on the use of Gen AI tools, and I will present to you the guidelines based on which this policy has been formed. And then the misuses of Gen AI tools, both for the undergrad programs as well as for the postgrad programs. And then I will be presenting to you the rules for the use and penalties for the misuse of Gen AI tools. And lastly, there will be key points and takeaways for today's presentation. So before moving on, let me first show you the sources of my presentation. The first source is the draft framework on use of generative AI tools in higher education institutes. That policy has been given by HEC, Higher Education Commission. They started working in 2023, and now recently they have formalized this draft. So most of my sources of this presentation is from this particular draft. Followed by, there is a research ethics module which I have studied in my PhD at Hong Kong University of Science and Technology. So some portion of my material is from that particular module, and Chat GPT, of course, GPT-5. But here I have mentioned that during the preparation of this presentation, the author used GPT-5 in order to improve readability, clarity, summarize. After using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility, legal, moral, etc., for the content of this presentation. So this particular lines I have deliberately added to emphasize on a point, which I will be explaining you in the next few slides, why I have written this particular thing. So the punchline of today's presentation, which you all have to advocate as well, that either don't use Gen AI tools or do ethical use of Gen AI. So, in English, there is in grammar, whenever you use a statement with an either, there is an followed by an or. So you have two options. So first is don't use Gen AI tools, then this session is not for you. So we all want to use generative AI tools, and what we want to do is we want to do an ethical use of generative AI tools. So here I will be showing you how you can ethically use generative AI tools. If you don't do an ethical use of it, then simply don't use it. That's the clear-cut punchline which we all have to remember. So यहाँ पे मैं एक चीज emphasize कर दूं सबको कि जो HEC की पॉलिसी है that is very clear कि आपने जनरेटिव AI के टूल्स नहीं यूज करने. अगर आपने करने हैं तो फिर आपने उसका एथिकल यूज करना है. तो ये बात हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, एकेडमिशियंस को सबको पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इन आवर. So now I will be showing you the HEC Higher Education Commission draft policy on use of Gen AI tools. This policy is based on some guidelines. So what is the guideline? That the first is you have to do a fair and ethical use of Gen AI tools, and this comes under responsible AI. So when I say about responsible AI means there are few pillars which we have to satisfy. The first one जो होता है वो हमारे पास होता है, it has to be fairness होनी चाहिए. ठीक है, और फेयरनेस का मतलब यह है कि सबको यकसा एक्सेस मिलना चाहिए टूल्स का, किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन इट. और हमारे पास सेकंड पॉइंट जो होता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी. आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन
कि आपने टूल्स को कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। और प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, कि आपने जो स्टूडेंट का डाटा है या आप किसी मेडिकल रिलेटेड डाटा पे काम कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी को आपने इंश्योर करना है, आप उसकी प्राइवेसी को लीक आउट नहीं कर सकते। अभी कल एक फेसबुक पे मैं एक मीम देख रहा था कि एक बंदा कह रहा था जी कि मैंने 10 GB ऑफ प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डाटा अपलोड किया है चैट जीपीटी जस्ट टू जनरेट एन ईमेल। ठीक है, सो यू कैन नॉट जस्ट अपलोड the confidential data on any Gen AI tool just to generate some data। और उसके अलावा हमारे पास इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, कि अकाउंटेबल कौन होगा, एंड पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और एट द लास्ट इट्स द इंटेग्रिटी, एकेडमिक इंटेग्रिटी दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। सो बिसाइड्स प्लेजरिज्म, अदर फॉर्म्स क्या हो सकती हैं एकेडमिक डिसऑनेस्टी के अंदर? दैट कम्स इम्पर्सोनेशन, घोस्ट राइटिंग, fabrication results, automating research and citation racketeering। ये सारी चीजें आती हैं आपकी एकेडमिक डिसऑनेस्टी के अंदर। सो एज अ स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि there are very strict policies, zero tolerance against plagiarism, not only in Pakistan but also abroad। So most of you are planning to go for your master's degree and PhD in future। So अगर आपकी किसी एक असाइनमेंट में, असेसमेंट में if you found to be a guilty of academic dishonesty, you will get an F grade। और सेकेंड अटेम्प्ट पे probably F grade in whole semester, and then you will be expelled from the university and you will be some have timeline कि इससे पहले आप किसी और यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। सो एकेडमिक डिसऑनेस्टी के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट टॉलरेंस है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि एकेडमिक डिसऑनेस्टी किस चीज में होती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। So there are the policy also presents the possible destructive effects of Gen AI technology on today's academic methods, जिस पे मैं इंशाल्लाह अभी आने वाली स्लाइड्स में बात करूंगा to explain my point so that you will get a fair idea कि हम आज क्या बात करने वाले। तो HEC has higher education institutions को टास्क दिया गया है कि they should develop formal permission system, which means कि वो जनरेटिव एआई टूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एकेडमिक प्रोसेस में, उससे पहले एक परमिशन सिस्टम होगा जिसमें फैकल्टी से और स्टूडेंट्स दोनों से परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो इट विल नॉट जस्ट बी कि हम टूल्स को राइट अवे शुरू कर देंगे अपनी असाइनमेंट्स में, अपनी असेसमेंट्स में। देयर हैज टू बी अ रिटन पॉलिसी एंड रिटन कंसेंट फ्रॉम बोथ साइड्स कि हम कैसे करने जा रहे हैं इसको। एंड वी हैव टू अडॉप्ट रिसर्च एथिक्स टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म इश्यूज फ्रॉम जनरेटिव एआई टूल्स in their scholarly work and research output। So हमने इसको प्लेजरिज्म का, आप सबको पता होगा, बहुत से लोग जो अपनी असाइनमेंट जमा कराते हैं, they get assessed by Turnitin सॉफ्टवेयर जिसको प्लेजरिज्म चेक करता है। अब प्लेजरिज्म के साथ साथ वो एआई कंटेंट भी चेक करेगा और उसकी भी कोई लिमिट डिफाइन की हुई है जिस पे आज हम बात करेंगे। सो ये वो पिलर्स और गाइडलाइंस है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है। अब हम आते हैं कि मसला क्या है, व्हाट आर द मिस यूजेस ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स इन अवर अंडरग्रेड करिकुलम में क्या है। सबसे पहली चीज जो है वो है शॉर्टकट टू लर्निंग। तो अक्सर लोग जो है वो जनरेटिव एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि हम बस हमारी लर्निंग का शॉर्टकट है, तो डीप डाउन चीजों को स्टडी नहीं करते, और ताकि सुपरफिशियल नॉलेज तो ले लेते हैं बट दे डोंट हैव द डेप्थ नॉलेज। तो ये एक बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमने जो है ये इसका एक मिस यूज है। बिकॉज इस तरह क्या होगा कि आप कभी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे नहीं, कभी आप इस इंफॉर्मेशन की डेप्थ में जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, सिंपली जो है वो सुपरफिशियल सा नॉलेज लेके एंड देन यू गेट द जॉब डन। सेकेंड जो मिस यूज है वो है इम्पर्सोनेशन का, स्पेशली अगर जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, तो जहाँ पे एक स्टूडेंट है वो अपने आप को पोस्ट करे जी मैं टीचर हूँ और वो आंसर दे रहा हो या रिप्लाई कर रहा हो, तो इम्पर्सोनेशन is another misuse of this, या TAs जो हो वो टीचर्स की तरह एक्ट कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो। एंड देन देयर आर सम ऑटोमेटेड ग्रेडिंग मैनिपुलेशन जो हो सकती है और जो इसका मिसयूज है। चीटिंग इन असेसमेंट्स, अगर आपके पास कोई ऐसी असेसमेंट्स हैं जिसमें आप के पास मोबाइल फोन और आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है और आप वहां से सारी असेसमेंट का जो बी इट मिड टर्म बी इट फाइनल, और इस पे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज भी अप्लाई होती हैं, और फेक रिव्यूज बनाना, इंडोर्समेंट्स करना फेक, ये मिसयूज है। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज आल्सो अ मिसयूज इन इट। उसके बाद और जो मिसयूजेस हैं उसमें है बाइसेस एंड एथिकल कंसर्न्स, एक्सप्लॉइटिंग सेंसिटिव डाटा और एकेडमिक फ्रॉड, मिसलीडिंग साइटेशन। बाज़ दफ़ा
चैट जीपीटी ऐसी साइटेशंस या कोई भी जनरेटिव एआई के टूल ऐसी साइटेशंस देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंस आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इससे पहले जब हम गूगल यूज करते हैं तो गूगल क्या करता है कि आपको वो सोर्स देता है कि यार ये सोर्स है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट की है। बट जेन एआई के टूल क्या है कि वो रन टाइम के ऊपर उसने टेक्स्ट को जनरेट करना है, तो समटाइम्स वो ऐसी साइटेशंस जनरेट करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी। तो दीज आर मिसलीडिंग साइटेशंस, और आप जब उन साइटेशंस को सर्च करेंगे वो होंगी नहीं वहां पे। सो एंड देन another misuse is bypassing plagiarism detection tools, जहाँ पे आप लैंग्वेज को ह्यूमनाइज कर देते हैं, उसको जो है वो थोड़ा सा किसी और टूल से गुजार लेते हैं या मल्टीपल टूल से गुजार लेते हैं और समहाउ आप बाईपास करना चाहते हैं। ये सारे इसके मिस यूजेस हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के। तभी तो पॉलिसी की जरूरत है, आज हमें इस सेशन की जरूरत है कि हमने इसको कैसे इन चीजों को अवॉइड करना है। फिर जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेड के, उनके मिस यूजेस क्या है हमारे पास? उनके मिस यूजेस हमारे पास हैं प्लेजरिज्म के, घोस्ट राइटिंग के, रिजल्ट्स को फैब्रिकेट करने के, यानी कि आप जनरेटिव एआई के टूल से ही डाटा जनरेट कराएं जो कि एग्जिस्ट ना करता हो, बट वो आपको एक फेक डाटा जनरेट और उसके ऊपर आपने रिसर्च की हो, तो उसकी फिर सारी बेसिस ही जो है वो सही नहीं है। और रिसर्च को ऑटोमेट करने में और लेजीनेस इन रिसर्च, ये जो है आपके मिस यूजेस हैं जनरेटिव एआई टूल्स के पीजी के पर्सपेक्टिव में। अब मैं कुछ बात करूंगा व्हाट आर द रूल्स फॉर द यूज एंड पेनल्टीज फॉर द मिस यूज। देखिए, रूल यूज करने के कुछ रूल्स हैं और मिस यूज करने पे पेनल्टी है, क्या है वो? सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो चैट जीपीटी और वट एवर जनरेटिव एआई टूल्स वी आर यूजिंग, दे हेल्प्स एनहांस लर्निंग, particularly outside the academic setting. So we all agree that we can use ChatGPT to enhance our learning. इसके ऊपर 8-10 पॉइंट्स हैं कि हम इसे लर्निंग कैसे एनहांस कर सकते हैं। आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने हो, हमने उसके ऊपर क्रिटिक करनी हो, हमने उसको लैंग्वेज करेक्शन करनी हो, क्लैरिटी और रीडेबिलिटी बढ़ानी हो, ये सब उसके पॉजिटिव यूजेस हैं लर्निंग के एनहांस करने के लिए। बट सेकेंड पॉइंट जो मैं सबको यहाँ बताना चाहूंगा, इट्स यूज टू complete assignments and thesis will have very serious consequences. So आप जब इसको यूज करते हैं ना, इसी जनरेटिव एआई के टूल्स को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए या थीसिस कंप्लीट करने के लिए, then it has very serious consequences. So plagiarism occurs when students use text generators without proper citation. So अगर आप प्रॉपर citation नहीं करेंगे और आप इस तरह के टेक्स्ट जनरेशन के टूल्स यूज करेंगे, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेजरिज्म। और मैंने आप लोगों को बताया पहले कि प्लेजरिज्म कम्स अंडर एकेडमिक डिसऑनेस्टी, और इस एकेडमिक डिसऑनेस्टी की बहुत हैवी प्राइस है जो आप सबको पे करनी पड़ेगी इस एकेडमिक कम्युनिटी में। आप लोग, बहुत से लोगों का प्लान होगा कि हम लोग मास्टर्स पीएचडी करने बाहर जाएं, आप लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे और अपलोड करेंगे। हर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर पीछे एक प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल लगा होता है। अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कॉपीड है या एआई से लिखवाया हुआ है, तो उधर ही आपकी एप्लीकेशन आगे जाती नहीं। तो यू हैव, आप लोग परेशान होंगे कि सर हमने मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने हमें जो है ना वो कांटेक्ट नहीं किया। और उसकी वजह क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो सारे आपके प्लेजराइज्ड हैं, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं या आपने जनरेटिव एआई के टूल से बनाए हुए हैं, तो सबके पीछे चेक लगा होता है। और मैंने आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज का बता दिया है, और ये रूल्स पाकिस्तान में भी हैं, बट हियर वी आर रिलेटिवली लेस स्ट्रिक्ट, बट अब्रॉड में देयर आर सीरियस पेनल्टीज। और मैं आपको बताऊं, एक दफा आपकी रेपुटेशन ऐसी हो गई कि आपने प्लेजराइज्ड मटेरियल जमा करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम नो वन विल ट्रस्ट यूर, और बहुत सालों लग जाते हैं रेपुटेशन को बिल्डअप करने में। तो ये चीजें आपने बड़ी केयरफुल इन चीजों के बारे में होना है। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक और सारे समझे इस बात को कि जनरेटिव एआई टूल्स जब आप यूज कर रहे हैं तो इट नेसेसिटेट्स students to verify the work's originality. So once you have generated some content, अब responsibility आपके ऊपर है कि आपने उसकी originality को verify करना है, देखना है कि यार ये चीज क्या ये citation exist करती भी है या नहीं, उस citation से जाके उसको चेक कर लें, उसको verify कर लें। This is something your job to be done. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सब लोग सोच रहे होंगे, अब यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेक्ट करती है? कि यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट्स को कि दे शुड प्रेजेंट ओरिजिनल वर्क दे प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली इन ऑल ग्रेडेड असाइनमेंट्स एंड थीसिस। सिंस आप सारे लोगों ने अपनी असेसमेंट्स के अगेंस्ट क्रेडिट लेने,
सो क्रेडिट लेने का मतलब है कि जब आपको यूनिवर्सिटी कोई डिग्री इशू करती है या कोई ट्रांसक्रिप्ट इशू करती है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि उसके अगेंस्ट आपने अपना ओरिजिनल वर्क जो है वो प्रेजेंट किया है, और एंड इट इज इंडिपेंडेंटली, एक्सेप्ट जिस काम में आपको कोलैबोरेटिव काम करने को कहा गया हुआ है या कोई ग्रुप असाइनमेंट्स है, इन ऑल ग्रेडेड असाइनमेंट्स एंड थीसिस. सो यूजेज ऑफ these tools remain limited to make text more readable, and academic misconduct जब होगी together with a zero grade, so plagiarism detection and unauthorized tool usage of generative AI in students work. अच्छा, अब आते हैं इसी रूल्स ऑफ यूज और पेनल्टीज फॉर मिस यूज में, कि जब भी आपने जनरेटिव एआई के टूल्स का यूजेज करना है एंड एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजीज का यूजेज करना है, तो आपने अपनी राइटिंग में क्या लिखना है, मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में आप सबको दिखाया था, और मैंने डेलिबरेटली ऐड की थी वो स्टेटमेंट कि ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्क द ऑथर या ऑथर्स यूज्ड नेम टूल सर्विस, जितने आपने टूल्स यूज किए हैं या जो से टूल यूज किया उसका नाम यहाँ लिखना है, और आपने वो यूज किस लिए किए, इन ऑर्डर टू जनरेट आइडियाज, रीडेबिलिटी, इंप्रूव क्लैरिटी, और अपनी लैंग्वेज बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया, किस काम के लिए इस्तेमाल किया वो भी लिखना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए वो भी लिखना है. और जब आपने ये लिख लिया, ये कर लिया, तो आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल एंड सर्विस द ऑथर्स रिव्यूड, आपने अपने काम को रिव्यू किया एंड एडिटेड द कंटेंट एज नीडेड, और जैसे इस कंटेंट को मुझे एडिट करने की जरूरत थी तो मैंने उसको एडिट किया, एंड आई टेक full responsibility whether it's legal, moral, for the content of the publication. So ये स्टेटमेंट सारे देखें, तो इस स्टेटमेंट को देख के आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ना सिर्फ जब भी आपने जनरेटिव एआई के टूल्स यूज करने हैं, अगर असाइनमेंट में यूज कर रहे हैं, थीसिस में यूज कर रहे हैं, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, जो टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं उनका नाम, उससे किया क्या है वो लिखें, उसके बाद आपने उस पर एडिट करना, उसको रिव्यू करना, ये आपका काम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, टूल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑथर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस ऑथर के ऊपर. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. तो जो मैंने शुरू में आप लोगों को ये बात कही थी कि हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल एआई की, तो रिस्पॉन्सिबल एआई की जब मैं आपको पिलर्स बता रहा था, तो उसके बेसिकली 5 पिलर्स हैं. तो जो फर्स्ट पिलर है वो हमारे पास है फेयरनेस. ठीक है, फेयरनेस इज द फर्स्ट पिलर. और उसके बाद पिलर है ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, सो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी. द थर्ड पिलर इज प्राइवेसी. और फिर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, और फिर लास्ट में हमारे पास है एकेडमिक इंटेग्रिटी. सो 5 पिलर्स वी हैव ऑफ रिस्पांसिबल एआई. सो ये सारे सेटिस्फाई होने चाहिए. सो ये स्टेटमेंट आपने मेंशन करनी है इन every assignment or thesis what you are doing where you have used GPT or any other tool, और उससे क्या काम किया है वो भी लिखना है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है students should acknowledge the integration of generative AI tools when preparing academic papers. जब भी आप कोई academic writing कर रहे हैं तो आपने उस tools की जो integration की है उसको acknowledge करना है. Any content produced by AI system needs to be receive appropriate acknowledgement in addition to the proper recognition of the original authors who provided the reference material. सिर्फ ये नहीं है कि आपने चैट जीपीटी को एक्नॉलेज कर दिया और उसका नाम है, चैट जीपीटी ने जहां से इंफॉर्मेशन ली है, जो असल ऑथर है उसको तो देना ही देना है क्रेडिट. माजी में क्या हो रहा था, इन पास्ट हम लोग जब भी कोई एकेडमिक पेपर लिखते हैं तो हम किसी के पेपर्स को रिव्यू करते हैं और उसको रेफरेंस में लिखते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो चैट जीपीटी वहां से इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेके देके दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल खुद जनरेट नहीं कर रहा और वहां से लेके दिखा रहा है, तो हमने चैट जीपीटी का तो एक्नॉलेजमेंट करनी है कि जी इसको हमने यूज किया है ये जनरेट करने के लिए. प्लस उसने जहां से ओरिजिनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ली है उनको भी आपने अपने रेफरेंस मटेरियल में एज अ रेफरेंस जो है वो ओरिजिनल ऑथर्स को क्रेडिट देना है. नहीं देंगे तो देन इट कम्स अंडर प्लेजरिज्म एंड दैट कम्स अंडर एकेडमिक डिसऑनेस्टी. सो students must avoid all activities of data generation and fabrication including data manipulation that utilize gen AI tools. So अक्सर आप लोगों ने कभी कोई मशीन लर्निंग का या AI के कुछ काम करना हो तो आपके जन डेटा सेट नहीं मिल रहा, चलो जनरेटिव AI को कहता हूँ मुझे कोई डेटा सेट जनरेट कर दे. सो वो डाटा की जो जनरेशन है उसके ऊपर आप कोई भी जो है ना इट इज
big no to use to fabricate or generate data. ठीक है, so this is something you cannot report because वो data exist नहीं करता और वो तो make up numbers हैं जो कि generative AI tool ने किया. So the students will face responsibility for misconduct when this situation occurs. और मैंने आपको बताया कि ये misconduct की penalties बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ academic life में बल्कि in future जब आप जाएंगे इंशाल्लाह job market में, अगर आपकी यही etiquettes और manners और आपका जो work ethics है वो ऐसे हुए तो उसके भी बड़े serious repercussions होंगे. हमेशा आपको ना look down देखा जाएगा कि यार ये जो है original work produce नहीं कर सकता और ये जो है वो चैट जीपीटी से जो है या जनरेटिव एआई टूल से प्रेजेंट करके लिया है, ना उसने पढ़ा है, ना उसने रिव्यू किया है, ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और ये आपने एक दफा करना है और उसके बाद आपका इमेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड फॉर सेवरल इयर्स. तो इसलिए दिस इज द फोरम जहां पे हम आज इस पे बात करें. आपके कोई कंसर्न्स हो, इश्यूज हो तो हम उसको डिस्कस करते हैं और हम अपनी डिपार्टमेंट में और अपने कैंपस में ये कोशिश करते हैं कि हम जनरेटिव एआई के टूल्स का यूज जो करें वो एथिकल करें और इसकी हमें ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे तो हम अपने फ्यूचर में और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे. सो रूल्स एक और ये कहते हैं कि जो एआई का कंटेंट है ना वो आपका 19% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. देयर आर प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जिसमें वो प्लेजरिज्म भी दे देता है, साथ एआई कंटेंट भी दे देता है कि आपने कितना कंटेंट एआई से जनरेट किया. सो इट इज अलाइंड विद द रीसेंट प्लेजरिज्म पॉलिसी ऑफ एचईसी. द स्टूडेंट्स ऑफ अंडरग्रेड एज वेल एज पोस्ट ग्रेड उनको अपने थीसिस में प्रोजेक्ट्स में ये बात लाजमी लिखनी है इस अपडेटेड प्लेजरिज्म अंडरटेकिंग की, और वो आपके सामने रीड कर देता हूँ. आई द नेम ऑफ स्टूडेंट आपने यहाँ ऐड करना है. आई डिक्लेयर ऑन ओथ that the research work presented in my UG, MS, PhD project thesis where applicable entitled the name of your project thesis in my research work and is not substantially contributed by any other person or generative AI tools. Any small contribution assistance wherever received has been duly acknowledged, cited, and that whole project thesis has been written by me under the latest plagiarism policy declared by HEC and by respective university as per policy on use of Gen AI tools. So इस स्टेटमेंट को पढ़ के भी आपको लग रहा है कि आपकी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप HEC की और यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसको पढ़ें, और जब आप अपना प्रोजेक्ट थीसिस कर रहे हो तो आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए. आप में बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब जनरेटिव एआई के टूल्स अवेलेबल हैं तो हम क्यों ना यूज करें, हम उससे क्यों ना काम प्रोड्यूस करें. बिकॉज आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से अपने काम का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं. काम करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, और काम क्या है कि आपने ओरिजिनल और आपने जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर टू टेक क्रेडिट. फिर आप क्रेडिट किस चीज का लेंगे अगर आप अपना ओरिजिनल काम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते. इसकी आगे क्या है. आई एक्नॉलेज द हायर एजुकेशन कमीशन एंड बैरियर यूनिवर्सिटी इन अवर केस zero tolerance policy on plagiarism. I, as an author of above titled project thesis, declare that no part of my project thesis has been plagiarized and any material used for reference has been properly referred, cited. I undertake, if I am found guilty of plagiarism in the above titled project thesis, even after the award of UG, MS, PhD degree, the university reserves the right to withdraw, revoke my degree, and that HEC and university has the right to publish my name on the HEC university website on which students are placed who submitted plagiarized project thesis. So देखें इसकी कितनी severe penalty है कि आप डिग्री कर भी जाएं उसके बाद भी यूनिवर्सिटी परसू कर सकती है कि आपने अपना प्रोजेक्ट या थीसिस प्लेजराइज जमा कराया है और आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं, और ये टैग लाइन जो है ना आपके साथ बहुत लंबे अरसे रहेगा. सो इसका फेयर यूजेज सीख लें. फेयर यूजेज का मतलब ये है, उसका एथिकल यूजेज का मतलब ये है कि जो बाउंड्रीज डिफाइन की हुई हैं कि आपने लर्निंग के लिए तो यूज करना है जनरेटिव एआई का टूल. जब आपने अपने रिसर्च के लिए जिसपे आप क्रेडिट ले रहे हैं अपनी असाइनमेंट, असेसमेंट, थीसिस, प्रोजेक्ट, उस पे आप उसको यूज करेंगे तो उसका मेंशन करेंगे कौन कौन से टूल्स यूज किए और उनसे क्या काम करवाया, और उसके बाद फाइनली उसको रिव्यू करें, उसको एडिट करें और एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें अपने काम की. ठीक है, और ये भी नहीं है कि आप 90% कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड हो. इट हैज टू बी बिलो 20% जो हमारी पॉलिसीज में. उसके बाद यूज ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स कंप्लाइज विद एग्जिस्टिंग कॉपीराइट
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। बाज़ दफा कुछ कॉपीराइट्स और आईपी के इश्यूज होते हैं कि जिनको आप जो कि जब आप जनरेट करा रहे हैं कंटेंट उस टाइम पे हो सकता है वो ख्याल ना रखे, तो आप जब वो काम कर रहे हैं और बाद में पता चला कि वो कॉपीराइट्स की और आईपी की वायलेशन कर रहा है, तो ये भी पेनल्टी बढ़ सकती है। तो इफ द रिवाइज प्रोजेक्ट थीसिस does not meet the criteria set under the rules, the university shall be held responsible, the student shall be held responsible, and the cases shall refer to unfair means control committee, departmental standing committee, or any other relevant committee of the department for awarding penalty depending upon the level of severity. So जो मैंने आप लोगों को बताया, first time usage के ऊपर there is a F grade in the assignment as well as course, और further usage के ऊपर F grade in the whole term, और थर्ड केस के ऊपर सम, ये मैं आपको कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूँ, एंड देन देयर इज एन एक्सपेल्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सोचिए आपने 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए की फीस जमा कराई हो अपने मास्टर्स प्रोग्राम में, और आप पहली असाइनमेंट को कॉपी करें और उसके ऊपर आपका एफ ग्रेड लग जाए, और दूसरी दफा ये दोबारा ये पेनल्टी, ये आपसे गलती हो तो आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाए, और फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ना ले सके। तो इतना ये सीरियस मसला है। इस चीज की ट्रेनिंग अभी से हम लोगों ने अपने अंडर ग्रेड से करनी है कि हमने इस तरह का जो है वो काम नहीं करना। तो अब तक जितनी मैंने बातें की हैं ये सारी मैंने ना आप लोगों को एक थ्योरेटिकल फाउंडेशंस बनाने के लिए की हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के एंड पे देयर आर सम की पॉइंट्स जो आप अपने साथ याद रखें और जो आप लेके जाएं, और आपने फिर अपने ये फ्रेंड सर्कल में अपने फेलो एकेडमिशियंस के साथ, फैकल्टी के साथ शेयर करनी है बातें, और ताकि ये चीजें आपके अंदर इनग्रेन्ड हो, सिर्फ सुनने से ये चीजें नहीं होंगी। तो पहली चीज क्या है जी हमारी, कि आप एआई को यूज कर सकते हैं for you can use AI for making assignments, or you can use AI for learning and understanding. बताएं, you can use AI for learning and understanding. So you can use AI for learning and understanding, not for replacing your work. तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, अब आप कहेंगे सर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? So you can use AI to ask questions, clarify concepts, summarize topics, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। सो मिसाल तौर पे अगर आपको टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया है तो आप उस टॉपिक के बारे में चैट जीपीटी से कहें यार मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं आंसर देता हूँ, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उनको आंसर दें। फिर आपके ये टॉपिक सर ने पढ़ाया है, इसके 50 एमसीक्यूज जनरेट करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपके मैंने जो टॉपिक को समझा है मैंने ऐसे समझा है, क्या मैंने ठीक समझा है? वो कहेगा हाँ आपने ठीक समझा है, बट आप इसमें ये चीजें भी देख लें। फिर आपके अच्छा ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इसकी एप्लीकेशंस यहाँ 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 होंगी, वो कहेगा अच्छा हाँ यहाँ तो है लेकिन यहाँ भी हो सकती है। तो आप उसको यूज करें फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट नॉट फॉर रिप्लेसिंग योर वर्क। फाइन। इस पे अब आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे कि सर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो इट इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, समराइज टॉपिक्स। और मैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स को ये जरूर कहूंगा कि जब आप लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूज जनरेटिव एआई टूल्स फॉर योर लेक्चर प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क जनरेटिव एआई टूल के ये कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों को सिखाना है, तो मैं कैसे सिखाऊं, मैं कौन सी उनको एग्जांपल्स दूं? वो आपको बहुत सी चीजें गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, जिससे आप बहुत इफेक्टिव तरीके से अपना लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्या है? डोंट यूज एआई टू जनरेट योर आंसर्स फॉर ग्रेडेड असेसमेंट्स। आपने जनरेटिव एआई को यूज नहीं करना अपने आंसर्स जनरेट कराने के लिए, अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट्स के लिए। तो अब ये जो काम कर रहे हैं आप कि जी एक टीचर ने असाइनमेंट दी है, उस असाइनमेंट को एज अ प्रॉम्प्ट ही डाल दिया चैट जीपीटी के ऊपर या किसी भी जनरेटिव एआई टूल के, और उसने उसका सोल्यूशन दे दिया, तो उसके सोल्यूशन को आपने कॉपी किया और आपने उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया, तो इट्स अ स्ट्रेट एफ, नॉट इन असाइनमेंट बट इन अ कोर्स इट शुड बी एफ, ताकि आपको ना एक लेसन लर्न हो कि यार ये कितना हार्मफुल और डैमेजिंग काम है। सो सेकंड जो 9 इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असाइनमेंट्स, क्विजेस, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स एंड थीसिस मस्ट बी योर ओन, इट हैज टू बी योर ओन ओरिजिनल वर्क। सो अगेन मैं री एम्फसाइज करता हूँ द पॉइंट नंबर 1 कि यू कैन यूज एआई फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, you can use AI for learning and understanding, but you cannot use AI to generate answers for graded assessments. Is it clear to everyone? यहां तक सबको बात समझ आती है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, if you do use AI to assist in writing, you must declare it. जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन के सबसे स्टार्ट में आपको अपने सोर्सेज ऑफ प्रेजेंटेशन दिखाए थे, जिसे मैंने कहा था कि मैंने चैट जीपीटी 5 को यूज किया है टू इम्प्रूव क्लैरिटी, टू इम्प्रूव लैंग्वेज। तो
So same goes with you. If you want to use Gen AI tools for assist in writing, you must declare it. By that, it means add the formal declaration statement at the end of your assignment and thesis. So आपने अपनी assignment के और अपने thesis के end पे बताना है कि आपने जनरेटिव AI का कौन सा टूल यूज किया और उससे क्या काम करवाया, और ये भी बताना है कि जब मैंने काम करवा लिया उसके बाद मैंने इसको चेक किया, मैंने इसको रिव्यू किया और मैंने इसको एडिट किया, और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इसकी सारी ऑब्लिगेशन, मोरल लीगल ऑब्लिगेशन मैं रहता हूँ, या अपने स्टेटमेंट में मेंशन करना है. तो ऑलवेज वेरीफाई AI output, which means AI can be wrong, outdated, or biased. So you have to cross-check with reliable sources, books, and journal articles. So जो information आपने generative AI tool से generate कराई है, उसको आपने verify कराना है. ये कभी नहीं होगा कि आपने जो चीज जनरेट कराई है और आपने as it is सबमिट करा दी है, या उसमें थोड़ी बहुत आपने लैंग्वेज की उसको ह्यूमनाइज किया और सबमिट करा दी है. दिस इज नॉट इनफ. जो बातें उसने कही हैं उन सोर्सेज पे जाके उसको वेरीफाई कराना है. अगर आपकी ये हैबिट नहीं है और आपने इस अंडरग्रेड में ये चीज डेवलप नहीं की, तो मैं ये हम ये एक्सपेक्ट बड़ा इजीली कर सकते हैं कि आप एकेडमिक जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब भी आप ये काम नहीं करेंगे. ठीक है. सो वट एवर इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय द AI यू हैव टू वेरीफाई. फॉर एग्जांपल आपने कोई इस्लामिक लिटरेचर के लिए आपने होली कुरान की कुछ आयत का पूछा, तो उसने कुछ चैप्टर नंबर और वर्स नंबर बता दिया, तो एक दफा जाके एक्चुअल कुरान पाक में भी देख लें कि यार वो चैप्टर नंबर और वर्स नंबर उसमें है भी या नहीं, और वही ट्रांसलेशन है या नहीं. इज इट क्लियर और नॉट? ये बात सबको समझ आती है? सो डू नॉट यूज AI टू फैब्रिकेट research data or references. So you cannot use generative AI to make a fake citations, और आप AI से कहें कि मुझे डाटा सेट जनरेट करके दे दो और वो आपको डाटा सेट जनरेट और उससे कोई रिजल्ट्स इन्वेंट कर लें, तो जब आपने डाटा ही फैब्रिकेट किया है तो उसके ऊपर जो रिजल्ट्स इन्वेंट किए उसकी क्या वैल्यू है, वो भी इट्स नॉट अलाउड. यू कैन नॉट यूज जनरेटिव AI टूल्स टू फैब्रिकेट द डाटा. उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते और उसको जो है आप इन्वेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर रिजल्ट्स. नेक्स्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली इस रीजन में बहुत मसला है, ये मुझे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट ये है कि हम प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट प्राइवेसी, which means do not paste confidential personal data into AI tools. So AI tools के ऊपर आप अपना confidential data है उसको पेस्ट नहीं करेंगे. मिसाल के तौर पे आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपने किसी साइकोलॉजी अपने पेशेंट्स का डाटा लिया हुआ है, अब आप चैट जीपीटी से उस पर कुछ राइटिंग इंप्रूव कराना चाह रहे हैं या कुछ काम करना चाह रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट अपलोड दिस डाटा ऑन जीपीटी. या किसी मेडिकल रिलेटेड कोई बंदा काम कर रहा है, वो अपने पेशेंट्स का डाटा चैट जीपीटी पे अपलोड कर ले. सो प्राइवेसी के ऊपर देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, और जिस तरह मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल AI में पिलर्स बताए हैं 5, उसमें से एक पिलर जो है वो आपका प्राइवेसी है. ठीक है. और अगर आप हमारे लिए एज अ मुस्लिम, हमें हमारी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और गाइडेंस है दैट इज होली कुरान. सो अगर हम कुरान पाक की बात करें, सूरत उल हुजरात में देयर इज एन आयत व्हिच सेज डू नॉट स्पाई. ठीक है. डू नॉट स्पाई, नीदर डू नॉट बैकबाइट. सो डू नॉट स्पाई जो है ना, इट्स लाइक दिस डिफाइंस द डायरेक्शंस. और फिर एक सूरह अल नूर है जिसमें है कि आपने अपने घरों के अलावा किसी और घरों में नहीं जाना. उसका मफहूम इस तरह है, अगर जाना है तो आपने पहले परमिशन लेनी है, और अगर आपको परमिशन ग्रांट हो तो फिर आपने जाना है और आपने लोगों को ग्रीट करना है. तो ये जो लॉज है ना, बाउंड्रीज डिफाइंड है कि हमारी क्या क्या बाउंड, हमने अगले की पर्सनल स्पेस की और उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है. तो ये बातें हमें बहुत क्लियरली, हमारे लिए ये प्रिंसिपल गाइडलाइंस है कि आप किसी की बैड इंटेंशंस नहीं, और आपने उसकी डाटा की जो प्राइवेसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन टू हैव इट. और ये बाहर तो ये चीजें बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस होती हैं. सो वी डोंट हैव अ राइट टू एंटर स्टूडेंट्स डाटा और अ पेशेंट्स डाटा इन अ मेडिकल फील्ड. और यही काम आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो आप अपलोड कर दें किसी जनरेटिव AI टूल पे, दैट इज नॉट अलाउड. इसके ऊपर इफ दे फाउंड इट आउट दे विल रिमूव यू फ्रॉम द जॉब, आपको डिसमिस कर देंगे. और आपको जो है एक टैगलाइन आ जाएगी जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे, तो वो नोशन आपके साथ रहेगा हमेशा कि यार इसको तो पता ही नहीं है, बेसिक प्राइवेसी के मैनर्स और बेसिक एटिकेट से नहीं पता काम करने की. सो ये बातें करने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी, सिर्फ ऐसे नहीं होगा.
कि हम सिर्फ यहाँ सुन लें और जब तक आप अपनी इस ड्यूरेशन में काम नहीं करेंगे तो देन इट वोंट हैपन. So we also have to maintain the originality and critical thinking. So AI should support your thinking. आपकी थिंकिंग को सपोर्ट करेगा बट नॉट रिप्लेस इट, उसको रिप्लेस नहीं करेगा. तो आप एआई को यूज करें एज अ ट्यूटर बट नॉट एज अ राइटर कि उसने सारा कुछ आपको जो है ना वो लिख के देना है. तो उसको एज अ आप कह लें कि टीचर, शेडो टीचर एज्यूम कर लें, उसको आप जो है सेकेंडरी टीचर एज्यूम कर लें, जिससे आप अपनी टीचिंग एंड लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं. अब जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, सो आप जनरेटिव एआई के टूल्स को बिल्कुल इस्तेमाल करें एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. उसमें आप उसको इस्तेमाल करें अपनी रिसर्च डिजाइन में, यानी कि आप उससे रिसर्च क्वेश्चंस के और प्रोजेक्ट्स के आइडियाज जनरेट करवाएं, कोई मसला नहीं है इसमें. आप उसको राइटिंग के लिए यूज करें, विच मीन्स कि आप अपनी राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के लिए करें, रेफरेंसेस को रीफॉर्मेट करने, मसलन आप अपने सारे रेफरेंसेस को इसको हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल में या जो और भी जितने रेफरेंसिंग स्टाइल हैं इसमें कन्वर्ट कर दे तो आपको कन्वर्ट कर देगा. क्वालिटी चेक्स करने हैं लैंग्वेज के, कंटेंट के, फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. बट जहां यूज करें उसका टूल का नाम और उससे क्या काम करवाया है वो मेंशन करें और फिर लिखें एक स्टेटमेंट कि मैंने उसके बाद उसको रिव्यू किया है और मैंने इसको चेक किया है, वेरीफाई किया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी. ठीक है. और जेनेटिव एआई के टूल्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, रिसर्च रैबिट बहुत यूज हो रहा है रिसर्च कम्युनिटी में फॉर लिटरेचर रिव्यू, और जेमिनाई. तो ये वो टूल्स हैं जो आप लोग अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं. तो ये एचईसी ने गाइडलाइंस में बता दिया कि ये आप काम कर सकते हैं. ठीक है. सो देयर इज नो हार्म इन यूजिंग जेनेटिव एआई टूल्स, बट यू हैव टू डू एन एथिकल यूज ऑफ जेनेटिव एआई टूल्स. सो इसके हवाले से जो मैं लास्ट जो की टेक अवे आज की प्रेजेंटेशन का वो ये होगा कि जेनेटिव एआई टूल्स कैन बी यूज्ड टू हेल्प यू लर्न बेटर, टू एक्सप्लेन, चैलेंज, प्रैक्टिस, ब्रेनस्टॉर्म, रिफ्लेक्ट, ये सब काम आप कर सकते हैं. बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट द फाइनल आंसर्स यू सबमिट फॉर मार्क्स. आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते. और एकेडमिक डिसऑनेस्टी जो है इससे बचना है, और इसकी बहुत सीवियर पेनल्टीज हैं. और मैंने आपको बड़ी दफा ये बात आज की प्रेजेंटेशन में रिपीट कर चुका हूँ कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. और अनफॉर्चुनेटली ये हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो जनरेट करवा रहे हैं और वो एज इट इज सबमिट करा रहे हैं. ठीक है. सो नॉट इवन चेंजिंग कि यार आखिर में जो 3-4 लाइनें लिखी होती है ना, वुड यू लाइक मी टू जनरेट मोर आंसर्स, तो वो लाइन भी कॉपी होती है. ठीक है. सो यू केम टू नो कि दिस इज अ स्ट्रेट एफ ग्रेड. और ये सोचें आपकी क्या मैसेज कम्युनिकेट करेगा जब आप किसी और जगह पढ़ने जाएंगे या करने जाएंगे. तो इस चीज को, इन प्रेजेंटेशन की जो पॉइंट्स हैं इनको अपने माइंड में रखें, यूज करें जेनेटिव एआई के टूल्स को फॉर योर लर्निंग. बहुत जबरदस्त इसके फायदे आप उठा सकते हैं. बट जिस चीज का काम का क्रेडिट आपने लेना है तो उस काम के लिए जो है ना वो यू कैन नॉट डू इट. अच्छा, ये मैं भी सर्च कर रहा था कि फैकल्टी कर सकती है चैट जीपीटी को टू जनरेट क्विजेस, असाइनमेंट्स. यस, फैकल्टी कैन डू इट. ठीक है. फैकल्टी को मना नहीं है कि वो चैट जीपीटी को यूज करके अपना पेपर बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं. उनको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उस क्विज, असाइनमेंट या मिड टर्म के अगेंस्ट उन्होंने क्रेडिट नहीं लेना. इट्स द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रेडिट लेना है. आपने तो, आप उस असाइनमेंट या उस प्रोजेक्ट या उस डिग्री के अगेंस्ट कुछ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए आपके काम में वो ओरिजिनलिटी है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ऑल द थिंग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. और नाउ द फोरम इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. और मैंने थोड़ा टाइम डेलिबरेटली रखा है आपके क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो मजीद क्लैरिटी आप लोगों को आएगी. तो आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ चीजें जो है वो सीखी होंगी. और मैंने आज का लेक्चर, सेशन इसमें बिल्कुल नहीं था कि एआई के टूल्स हैं कौन से, कैसे यूज करने हैं, प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं. ये आज के सेशन का टॉपिक नहीं है. आज के सेशन का सिर्फ टॉपिक ये था कि हमने जेनेटिव एआई के टूल्स का एथिकल यूज कैसे करना है. तो मैंने आपको जो आखिरी जो 8-10 की टेकअवेज या पॉइंट्स बताए हैं, इफ यू नो इट इन एज अ गाइडलाइन, तो इंशाल्लाह आप जो है इसकी इफेक्टिव यूज करेंगे और देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स इन इट. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.
जैसा कि फोकस कुछ साइड में दिखाने को देता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा आपने कहा कि पहले भी यही को आप प्रेफर करें, फिर उसके बाद लोगों ने बहुत सारे रहते थे कि वो एक्चुअल वो यूज नहीं करते। तब तक एक ब्रेन हम कर रहे हैं कुछ बारे में तो मुझे ऐसे बारे में पैसा देख रहा हूँ उसके कुछ ऐसे टॉपिक है जो एआई मुझे बहुत अच्छे है कि उसके मेरे ही कार्य करते हैं। तो उस रिलेटेड का पेपर निकालो और किसी भी कुछ आइडिया मुझे का करो और उसको रिफ्रेश करो आप जान पाएंगे। तो सर ये दोनों को पीछे करना ये बात है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैंने इस पे यहाँ मेंशन भी किया था कि जब आप कुछ जनरेटिव एआई का टूल कोई जनरेट कुछ रेफरेंस दे रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो आपने जनरेटिव एआई के टूल को तो मेंशन करना ही करना है कि मैंने GPT-5 यूज किया और इस काम के लिए यूज किया। उसने जिस जगह से इंफॉर्मेशन ली है उस सोर्स को भी आपने रेफर करना, वो तो मस्ट है, वो उस पर तो कोई छुट्टी नहीं है, यानी कि दोनों को मेंशन करना जरूरी है। और ये बात HEC की जो गाइडलाइंस है उसमें बड़ी क्लियरली मेंशनड है और ये मैंने ये डिटेल्स पढ़ के बच्चों को सुनाई थी, उसमें यही बात मेंशन की हुई थी कि दोनों को मेंशन करना जरूरी है। हाँ। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। So during the preparation of this work, the author used ChatGPT-5 in order to language improvement, readability, clarity. After using this ChatGPT-5 service, the authors reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility, legal, moral for the content of the publication. उसके बाद आपने कहना है जी कि I declare on oath that the research work presented in this my UG, MS, PhD project thesis where applicable entitled this is my own research work and is not substantially contributed by any other person or generative AI tool. Any small contribution assistance whether received has been duly acknowledged, cited. यानी कि आपने ChatGPT को भी साइट एक्नॉलेज किया है, उससे क्या काम करवाया उसको साइट किया है और आपने जिस उसने जहां से लिया उसको भी ऑब्वियसली आपने साइट किया ताकि प्लेजरिज्म ना हो। और this has been written under my latest plagiarism policy as declared by HEC and respective university as per policy on generative AI tools. तो ये सारा कुछ लिख के ये सारी स्टेटमेंट्स आपने वहां मेंशन कर दिए। वो आपने चेक करना है ना, वो आपने चेक किया और अगर उसने रेफरेंस में एग्जिस्ट नहीं करता तो डिस्कार्टेड। नहीं, रिफ्रेश नहीं करना, उसको रिफ्रेश नहीं करना, पहले उसको चेक करना है कि वो इंफॉर्मेशन, तो छोड़ दें उसको, डिलीट कर दें। हाँ हाँ, ये जब कोई चीज है ही नहीं उसको रिफ्रेश क्या करना, अपना टाइम रिफ्रेश करने में क्यों जाया करना। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, उसका सोर्स देखना है, सोर्स देखने के बाद उसको पढ़ना है, समझना है, फिर बात आएगी आखिर में रिफ्रेशिंग की। तो ये नहीं है कि असाइनमेंट्स के लिए आपने चीज सर्च की, ChatGPT ने बना दी और आप उसको रिफ्रेशिंग में लग गए, मतलब ये तो बेसिकली चीटिंग है ना, डिसऑनेस्टी है कि आपका काम वो जनरेट किया और आप उसको ह्यूमनाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हम तो ChatGPT को यूज करना चाह रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये मैंने सारे आज पॉइंट्स दिए हैं, मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ सबके लिए, क्योंकि एक दफा देखने से नहीं आते कि आपने AI को यूज करना है लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने उससे अपने आंसर्स नहीं जनरेट करवाने फॉर असाइनमेंट्स, आपने उसको असिस्ट यूज करना है एज एन असिस्टेंट फॉर राइटिंग और आपने उसको डिक्लेयर करना है, आपने उसकी आउटपुट को वेरीफाई करना है। और अगर वो क्योंकि गलत हो सकती है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, बाइस्ड हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है, उसके बाद आपने उसे फैब्रिकेटेड डाटा सेट जनरेट्स नहीं कराने, उसके बाद आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पेस्ट नहीं करनी, आपने ओरिजिनल थिंकिंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को मेंटेन करना है, ओरिजिनलिटी को। और क्या काम आप ChatGPT से करवा सकते हैं, आप जनरेटिव AI से जनरेट करा सकते हैं स्टूडेंट राइट क्यूरीज इन GPT एंड यूज regenerate response function to examine alternate responses. You can use AI as an opponent to develop an argument. You can use AI to group, to research and solve problems together. You can use AI to act as a guide to navigate physical and conceptual spaces. You can use AI to assist throughout the design process, to provide, play with, explore, interpret data, help students reflect on learning material, and offer games and challenges to extend learning. ये वो काम है जो आप कर सकते हैं। तो ये लर्निंग के हवाले से है, लर्निंग के और डेवलपमेंट के हवाले से। और किसी का कोई क्वेश्चन?
for the alarm, they say like there is a flow of fluids and we can use it all time again. Then still we have to retrain if I use it for language improvement. If we have to retrain, and the second question is, does it make the research less worthy if we give credits or make DPI author research? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सो इसका कोई ना बड़ा ऐसा एग्जैक्ट आंसर तो मेरे माइंड में नहीं है कि मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दूं। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि जिस तरह जनरेटिव एआई के टूल्स एडवांस हो रहे हैं, सो देयर इज नो हार्म या देयर इज नो नेगेटिव थिंग इन इट कि आपका ये काम किसी हद तक इसको मिनिक्यूल या छोटा नहीं करेगा कि अगर आप एआई को क्रेडिट देंगे, बट इन अ ड्यू वे जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। सो फ्यूचर में आप क्रेडिट दें बट बताएं कि उससे मैंने क्या काम किया है, ठीक है, दैट्स फाइन। जो दूसरी बात आपने की ना कि उससे जो मैं कंटेंट जनरेट करा रही हूँ तो उसको क्या मैंने रिफ्रेश करना होगा। सो एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जी 19% का हमारे पास अलाउड है। सो ये भी नहीं है कि आपका सब्सटेंशियल काम जो है वो सारा एआई कंटेंट जनरेटेड हो, तो फिर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो आप उससे गैप्स जनरेट करवाएं, आप उससे आइडियाज जनरेट कराएं, लेकिन उसको वेरीफाई जब आपने किया है, उसको रिफ्रेश आपने किया है, उसको आपने रिव्यू आपने किया है, तो फिर ऑब्वियसली देन इट्स यू हु टुक अप द वर्क। तो इवेंचुअली होगा क्या कि काम भले आप उससे इनिशियल लेवल का डर्टी वर्क करवा रहे हैं, बट उससे हायर एंड के काम में आप उसको एक दफा खुद भी चेक इन कर रहे हैं, तो वहां पे वो एड्रेस हो जाएगा। तो इसलिए 19% की जो टॉलरेंस लिमिट है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड है कि इस हद तक तो आप कर सकते हैं। बट किसी लिहाज से मेरा ख्याल है कि जब तक अगर आप इन चीजों का यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका काम स्लो हो जाएगा। अब होगा क्या आने वाले टाइम में कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि जहां पहले रिक्वायरमेंट होती थी ना एक सर्टेन लेवल की, अब उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी हर जर्नल की या मेजॉरिटी जर्नल्स की। तो थोड़ा सा आपको अपने काम की अपनी गेम बढ़ानी पड़ेगी, यू हैव टू लेवल अप योर गेम। तो इसको यूज करें बट एथिकल यूज करें। तो एथिकल यूज करने के हवाले से आज हमने एक सेशन किया है। इसके ऊपर पॉलिसी में और भी ये बातें मेंशन्ड है, एजुकेटर्स के लिए मेंशन्ड है, जो कि हम उस पर एक दफा बात कर चुके हैं। वो ये है कि ये पॉलिसी तो आ गई है, कुछ इसकी ड्राफ्ट उन्होंने बना के दिया है कि एज अ एजुकेटर पे वो कह रहे हैं कि आप अपने असेसमेंट्स को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें कि उसमें एआई जनरेटिव एआई के टूल्स टीचर्स बच्चों को यूज करने को दें, बट उससे बड़े लेवल का काम उनसे करवाएं। जिसपे हम भी इस पे एक फर्दर सेशन भी रखेंगे कि हम जनरेटिव एआई को यूज करते हुए क्या उनको ऐसी असेसमेंट्स करा सकते हैं कि जिसमें स्टिल दे हैव टू बी क्रिएटिव, दे हैव टू यू नो वी हैव टू स्पार्क क्रिटिकल थिंकिंग। तो फॉर योर केस आई वुड से कि यूज इट वाइजली और एथिकली, दैट्स मोर। और आई होप कि मैंने जो पॉइंट्स आप बताए हैं इससे आपके स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी होगी, और स्टूडेंट्स भी जब ये असाइनमेंट्स असेसमेंट जमा कराएंगे तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन, जो लोग अपनी असाइनमेंट्स पे काम करते हैं, आपका तो चूंकि यूजेज है तो मेरे ख्याल आप बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं और आप इस प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे, इस पे भी कोई कमेंट करे। और साथ में डेटा एनालिसिस तो अगर ये वाले एस्पेक्ट आपने दावत रखे हैं कि आपकी रास्ता मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू कैन गेट मनी क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम दैट डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस। अगर आप जनरेटिव ये नहीं कहता उसको प्योरली आप अडॉप्ट करें, लेकिन ये तो वहाँ से आपके बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो सकते हैं प्रॉब्लम जो शायद आपको नहीं होना। फाइनली आई एक्नॉलेज दैट देयर इज अ ह्यूमन ब्रेन। आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो आपका काम है, जो आपकी अपनी एबिलिटीज है, वो ज़्यादा नजर आनी चाहिए के अंदर। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे कि मैनिपुलेशन और एनालिसिस ना करें इसके लिए, तो प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू समथिंग। ठीक, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसमें ये है कि आपने दो डिफरेंट बातें की, मैनिपुलेशन इज अ सेपरेट थिंग एंड डेटा एनालिसिस इज अ सेपरेट थिंग।
अच्छा, पहली तो ये बात है कि एज एन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास थोड़ा सा रूम ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई डिग्री नहीं लेनी, आपने कोई डिग्री अर्न नहीं करनी है। इसी तरह फैकल्टी के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक्स के परस्पेक्टिव में। स्टूडेंट्स ने चूंकि उस असाइनमेंट्स या ग्रेड्स थीसिस के अगेंस्ट क्रेडिट लेना है, तो उस क्रेडिट के लिए दे हैव टू डू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, जो इस पे आज हमने बात की है। डाटा मैनिपुलेशन की और डाटा फैब्रिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, आप में से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी किसी बैंक के डाटा के ऊपर कोई काम करना है, या आपने किसी मेडिकल के डाटा के ऊपर काम करना है, या किसी यूनिवर्सिटी के डाटा के ऊपर काम करना है, और आपके पास डाटा सेट नहीं है। आप चैट जीपीटी से कहें मुझे डाटा सेट बना के दो, वो आपको रन टाइम पे फैब्रिकेटेड डाटा बना के दे देगा। तो उसके ऊपर आप एनालिसिस करें, रिजल्ट्स निकालें और पब्लिश कर दो। तो ये अलाउड ना, डाटा आपने फैब्रिकेट किया है, वो डाटा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और आप जनरेटिव एआई के टूल्स को आप जितने मर्जी डाटा सेट बना लें। सो अक्सर मैं पावर बीआई का जब लैब करा रहा था, तो उसमें बाज दफा मुझे डाटा सेट नहीं अवेलेबल था, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि भाई मैं डाटा सेट मुझे रन टाइम पे बना के दो। बट वहां पे मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, वहां मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, लर्निंग के लिए कर रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ, किसी जगह पब्लिश नहीं कर रहा। तो वो मैं कर सकता हूँ, मैं टॉय एग्जांपल उसे कहता हूँ, यार इसकी छोटी सी डाटा सेट आप मुझे जनरेट कर दो, उसके ऊपर मैंने कुछ काम करना है। लेकिन आप एज अ साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स का फेक डाटा जनरेट करवाएं जीपीटी से, और उस फेक डाटा के ऊपर रिसर्च के आप डिस्ट्रीब्यूशंस बना लें, वो सब आप कर सकते हैं एनालिसिस वाले काम। बट गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करें फॉर योर ओन रिसर्च, जिसमें आप कुछ मैसेज ऐसा शो करना चाह रहे हो कि हकीकत में उसके बरक्स हो, इकोनॉमी नीचे जा रही हो, और आप डाटा से को ऐसा मैनिपुलेट करें जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। तो वो चीज चैट जीपीटी आपको करके दे देगा। आप उसको अपने इनपुट दे दें, यार ये इनपुट है, मुझे इसका ऐसा जवाब दो कि शो करेगा जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। वो आपको उसमें से भी ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करके ना आपको आउटपुट दे देगा। ये काम फॉल्सिफाई जो है ना, फैब्रिकेशन वाले काम नहीं करने, और ये बड़े आसानी से अब हो सकते हैं। और आप सोशल मीडिया जो देखते हैं, हर चीज पे जो है ना मुतजाद ओपिनियंस राय, वो क्या है, सब लोग जो है वो जेनेटिव एआई के कंटेंट को यूज करके जो है जो मर्जी बना लें, जिस तरह मर्जी उसको लेके चले, वो नहीं अलाउड। स्पेशली हमारी एकेडमिक कम्युनिटी में जहाँ पे आपने उसको पब्लिश करना है, उसको प्रेजेंट करना है, दैट इज बिग नो, वो मैंने एनालिसिस आप कर सकते हैं। और एज ए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास थोड़ा रूम ज्यादा है। आप अगर उसका एआई कंटेंट 100% भी हो आपके लेटर में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने कोई डिग्री थोड़ी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना लेटर टाइप कर रहे हैं, तो आप सारा का सारा लेटर उससे बनवा लें, सो व्हाट, एज फार एज आपने उसको पढ़ लिया है, उसको रिव्यू कर लिया है, उसमें आपका कंटेंट वही बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, तो इट्स ओके। बट स्टूडेंट्स के लिए जिसकी असाइनमेंट के वो मार्क्स लेना चाह रहे हैं, दे कैन नॉट डू इट। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का? जी बिल्कुल बेटा पूछे। बच जाएंगे। हम्म, हम्म। यानी कि प्लेजरिज्म से तो आप बच जाएंगे, लेकिन सपोज करें कहीं आप पकड़े गए, इस तरह पकड़े गए कि वो डाटा एग्जिस्ट नहीं करता था उस सोर्स में, या वो डाटा जो है आपका आपने वेरीफाई नहीं किया, उसमें हेलुसिनेशन या कोई गलतियां थी, यानी कि जिसपे मैथमेटिकल गलतियां थी और भी गलतियां थी, और कल को पकड़ा गया और आपने एडमिट कर लिया जी हाँ ये तो मैंने यहाँ से किया था, मैंने सिर्फ इसको पैराफ्रेज किया, तो अब आप पे छाप लगी कि यार ये चोर है, सर्टिफाइड चोर है। अब उसका क्या नुकसान होगा, सोचें उसका आगे फ्यूचर आपका कैरियर में क्या उसकी हर्डल्स होंगी, और ये छाप आपकी बहुत अरसा रहेगी। आई नो मेनी ऑफ माई अलुमनाई जिन्होंने मुझे आके बताया कि सर हमारे ऑफिस में किसी को अपने कोई बड़े पाकिस्तान के टॉप 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक एम्प्लॉय को काम दिया, उसने एज इट इज जीपीटी से जनरेट करा के मुझे सबमिट कर, ना पढ़ा ना रिव्यू किया। वो दिन और आज के दिन, भले उसकी 15 साल की सर्विस है, नाउ ही इज जीरो वैल्यू इन द कंपनी। सोचे आप अपनी पूरी प्रेस्टीज लूज कर देंगे। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप भले 2 लाइनें लिखें, आप भले थोड़ा काम कर लें, लेकिन अपनी जो वर्क एथिक्स है ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये
ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको बताऊं, बाहर की प्रोफेसर्स, बाहर की जो कंपनीज हैं, दे रिगार्ड दिस थिंग वेरी हाई कि यार ये बंदे का कैरेक्टर क्या है। और भले आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले 10 पेजों की रिपोर्टें ना लिख के दें, आप 2-3 लाइनें लिखें, जितना काम हुआ है लिख दें, जो नहीं हुआ बता दें यार ये नहीं हुआ, उसकी ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू कि आप फेक सबमिशंस और फैब्रिकेटेड सबमिशंस करें। मेरा ये पॉइंट है। वालेकुम सलाम। हम अपने फाइनल सबमिशन से पहले कोई ऐसा है कोई टूल ऐसी वेबसाइट बता दें जहाँ से पहले ही चेक करें कितना परसेंट एआई यूज किया है, जैसे मैं 3% यूज करता हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसी वेबसाइट पे चेक करें तो वहाँ पे अगर वो हमें कम बता रहे हैं, अगर हम फाइनल सबमिशन दे रहे हैं फिर वो मार्क करके एग्जाम में ना आते तो कोई ऐसी वेबसाइट ऐसी अच्छा सवाल आपने पूछा। ये देयर आर टूल्स अवेलेबल, मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं है। हम लोग एज अ फैकल्टी क्या करते हैं कि हमारे पास टर्निटिन का अकाउंट है जो हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हुआ है। उस टर्निटिन पे हम आपकी असाइनमेंट को चेक करते हैं, वो हमें उसमें प्लेजरिज्म कितना है ये बताता है, और साथ आप एआई कंटेंट भी बता रहे हैं कि वो इवन दो वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब उसमें भी बड़ी गलतियां हैं। अभी भी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होने बाकी है कि एआई के टूल्स जो है वो प्लेजरिज्म डिटेक्शन के हवाले, इसके ऊपर ना एक अलग सेशन होगा कि कि जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स हैं क्या और किससे आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास इसका नॉलेज भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो आपने पिछली बात की ना वो थोड़ी इनकम्प्लीट थी कि आपने ये टूल्स यूज किए हैं, ये तो बताना ही बताना है, उनसे क्या किया है ये भी बताना है कि इनको यूज करके मैंने क्लैरिटी इंप्रूव की है, मैंने इसको यूज करके समरी की है, या इसको मैंने यूज किया था फॉर आइडियाज जनरेशन और आखिर में मैंने लैंग्वेज करेक्शन किया। तो ये आपने पूरा लाइन लिखनी है, उस पर पूरी चीज बतानी है, ठीक है। और एनीवन किसी को अगर टूल्स का पता हुआ है एट दिस टाइम कि एआई का कंटेंट कैसे चेक कर सकते हो, तो एनीवन कैन आल्सो ऐड ऑन। टर्निटिन मुझे पता है जो हम यूज करें, बाकी देयर आर लॉट ऑफ, मैं ऑनलाइन जब सर्च करता हूँ लिखे आ जाते हैं बड़े टूल्स और वो आपको कुछ ह्यूमनाइज भी कर देते हैं। बट मैंने वही बात की ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैराफ्रेजिंग, जैसा सर ने सवाल पूछा था। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एआई ने कंटेंट जनरेट किया आपने उसको पैराफ्रेज कर देना और 19% से बच जाना है, नहीं। जो जनरेट किया उसको तो पढ़ना है भाई, उसमें है क्या, वो सोर्सेज एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन ठीक है भी या नहीं है, मेरे से रेलिवेंट है भी या भी नहीं, जो मैंने पूछा था उसका वो आंसर कर भी रहा है या नहीं कर रहा, जो सर ने मुझे सवाल दिए हैं क्या ये उसको रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी तो आपने चेक करना है ना। ये चेक करना है और उससे लर्निंग लें और लिखें अपना आउटपुट, और उसको बेशक उसकी अंग्रेजी ठीक करवा लें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि कहते हैं कि टूल यूज करने हैं, कौन से आपने एज स्टूडेंट में रिक्वायर्ड किया कि ये होनी चाहिए। तो सर अगर पिछले देखिए तो यार ये था तो उस टाइम भी तो काम हो रहा था, तो अगर हम इसको टोटली ध्यान कर दें स्टूडेंट लोग, तो आप मैं तो समझता हूँ कि इससे थिंकिंग और क्रिएटिविटी को खत्म किया जा रहा है। तो एक काम को हम इतने इजी वे में कर लेते तो हमारी क्रिएटिविटी तो खत्म हो ही जाएगी। जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट चैटजीपीटी से कॉपी करके और पेस्ट करके सबमिट करा देते हैं, तो इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जा रहे हैं, जैसे एचईसी की आपने भी बताया। तो आगे तो आपसे 10 साल या 15 साल बाद एआई और इसको एआई को बदल भी गया, तो इस तरह तो मार्केट में की कंपटीशन में भी हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यही आज बताने का मकसद था कि पहली लाइन जो मैंने सबसे पहली लाइन प्रेजेंटेशन की शुरू में की थी, डोंट यूज जनरेटिव एआई टूल्स, इधर डोंट यूज इट और यूज इट एथिकली। एथिकली अलाउड है, बट ऐसे नहीं कि बस यूज कर रहे हैं और उसका भेद जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं और ओवर रिलायंस कर रहे हैं, वो नहीं। सो आप यूज करें और यूज करें फॉर लर्निंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। और एथिकली यूज में ये है कि आप उसका एथिकल यूज करें, और जिसके लिए आज हमने ये प्रेजेंटेशन रखी है कि आप समझें कि उसका एथिकल यूज किया। दूसरी जो बात आप कह रहे थे ना कि बैन करने वाली, आप इसको यूज करके यू कैन डू वंडर्स। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, जो मेरी जो अपना ओपिनियन है कि जो आप 1 साल में सीखते थे ना पहले, आप 1 महीने में से भी कम टाइम में सीख लेंगे। कि आप जहां फंसे वहां सवाल पूछ लिया, क्रिटिक कर लिया, अपने आप की लर्निंग को रेक्टिफाई कर लिया, एग्जांपल्स पूछ ली, बुक्स को समराइज कर दिया। सो लर्निंग के लिए इट्स अ वेरी फास्ट, इट्स अ क्विक थिंग। सो मैं कहता हूँ अब आपके पास इतना रूम है और कंपटीशन आगे बढ़ना है, तो इसको यूज करेंगे तो आप गेम में रहेंगे और कम्पीट करेंगे, बट अनएथिकल यूज नहीं करना। अगर आप कोई स्टूडेंट ये समझता है
कि जी अब मैंने डिग्री प्रोग्राम में रजिस्टर कर लिया है, सारी असाइनमेंट मैं ऐसे बनाऊंगा, सारे क्विज ऐसे बनाऊंगा बेटे से, और कुछ में 0 आ जाएंगे, कुछ में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो एवरेज में तो 70-80% नंबर लेके पास कर जाएगा। तो ये नहीं है, दिस इज नॉट द वे। अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया तो इट्स एफ इन सेमेस्टर, ठीक है। तो इसकी बहुत सीरियस रिपरकशंस है, ये बात अभी आप लोग नहीं समझ रहे। हमारी फैकल्टी भी अभी बहुत लीनियंट है, और ये भी मैं इस पे अपनी फैकल्टी के साथ सेशन करूंगा कि हमें कहीं ना कहीं प्राइवेसी के, कहीं ना कहीं डाटा की जो प्राइवेसी की हम बात करें, एथिक्स की बात करें, कहीं ना कहीं हमें ये चीजें सीखनी पड़नी है। अदरवाइज ये हमेशा हमने बाहर जाके ये देखा है, बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अब्रॉड में, बिकॉज कि हमारे अंदर ये चीजें लैक करती हैं। सो आपको एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत डिसएडवांटेज होगा अगर आपको चीजों का एथिकल यूज नहीं आता। आप इसका एथिकल यूज समझ जाएं, फिर आप यूज करें, उसको क्रेडिट दें, उसको मेंशन करें, उसको वेरीफाई करें, ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, तो व्हाई नॉट यूज इट। आपको अलाउड है। और मुझे लगता है मैंने खुद इस प्रेजेंटेशन में चैट जीपीटी 5 को यूज किया है। मैंने सबसे पहले जो आज प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने अपने जराए बताए थे, उधर आमदनी के जराए बताए, मैंने प्रेजेंटेशन के जराए बताए। सो तीसरा जो जराए था वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, वो ये है हमारे पास, जो मैंने आज की प्रेजेंटेशन में आप लोगों को सबसे शुरू में दिखाया था, deliberately sources of this presentation, chat GPT-5. During the preparation of this presentation, the author used GPT-5 in order to improve readability, clarity, summarize. मैंने इन कामों के लिए यूज किया GPT-5 को, और after using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility, legal, moral, for the content of this presentation. अब ये लाइन आपने ऐड करनी है आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन के, अपने प्रोजेक्ट के, अपनी थीसिस के, अपनी असाइनमेंट के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें, उससे समराइज जरूर करें, क्लैरिटी जरूर लें, आइडियाज जनरेट कराएं, फ्लो कराएं, बट उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको वेरीफाई करें और क्रेडिट दें, ध्यान देना पड़ता है। एनी क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है, फिर हम ऐड करें आज का लेक्चर यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया।